میں آئے، مجھے بھلی لگتی ہیں یہ باتیں جب میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار رہیں۔ ہم کب چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سیاست میں ملوث ہو؟ ہم کب چاہتے ہیں کہ وہ دفاع کے علاوہ کوئی اور کردار ادا کریں؟ لیکن کیا کریں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ غلطیاں ماننی پڑیں گی اور اس غلطی پر قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے انتخابات کے نتائج تبدیل نہیں کیے، اگر آپ نے عمران خان جیسے نااہل اور اس کی جماعت کو اقتدار نہیں دیا، تو آپ نے پہلی رات ہی یہ کیوں کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ آپ نے عزت و ذلت کے حوالے سے ان کو مبارکباد دی، اور مجھے حیرت ہوئی جب کہا گیا کہ ہم نے تو دشمن کو شکست دی ہے، انتخابات پی ٹی آئی نے جیتے ہیں اور فتح کا اعلان آپ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کامیابی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے شکست دی ہے تو کس کو شکست دی ہے؟ آپ نے فتح حاصل کی تو کس کے مقابلے میں حاصل کی ہے؟ اگر آپ ہندوستان کو شکست دیں، اگر آپ سرحد پر پاکستان کے جھنڈے گاڑ دیں، اب اگر آپ کشمیر کو ہندوستان کے پنجے سے آزاد کرا لیں، ہم آنکھوں کے پلکوں پر فوج کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، جرنیل کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بتایا جائے کہ یہ فتح کس کے خلاف تھی، یہ شکست کس کو دی گئی تھی۔ آپ اگر پاکستان کے عوام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو پھر آپ واضح کر دیجئے۔ آپ پاکستان کے عوام کو شکست دیتے ہیں تو آپ فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سیاست نہیں چلے گی، ہم نے بزدلی کی سیاست نہیں دیکھی، ہم نے حق کی آواز بلند کی ہے اور یہ بلند کرتے رہیں گے تا وقت کہ آئین کے مطابق تمام ادارے کام شروع نہ کر دیں۔ نعرہ تکبیر! گو نیازی! گو نیازی! میرے محترم دوستو، ہم آج جس محاذ پر ہیں، ہم اپنی رکاوٹیں جانتے ہیں۔ ہم جمہوریت کے راستے میں جو سد راہ ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ ہمیں سیاست میں 40 سال ہو چکے ہیں، خدا کے لیے ہمیں الف بے جیم سیاست کا مت سمجھائیے۔ ہم پرائمری سکول کے بچے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں بلیک بورڈ پر اے بی سی اور الف بے جیم پڑھائیں گے۔ سیاست سیکھنی ہے، سیاست کے اصول جاننے ہیں تو پھر ہماری شاگردی کرنی ہوگی، ہمارے بغیر آپ کو سیاست نہیں آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھائی، ہم بحرانوں سے لڑنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ہم ملک کی آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس قوم کی عزت و وقار کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس قوم کی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے ووٹ کی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور جب تک ہم قوم کو اس کے ووٹ کی امانت واپس نہیں دلائیں گے، انشاءاللہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ پیش رفت ہماری آگے چلتی رہے گی۔ میرے محترم دوستو، تم نے پاکستان کو معاشی لحاظ سے کنگال کر دیا ہے۔ آج تمہارے پاس
सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और कहते हो कि हम लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बेवकूफो, आज 70 साल गुजर गए पाकिस्तान के छोटे बड़े मुलाजिमीन, उनकी कुल तादाद अभी तक 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। तुमने 1 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देने की बात किस बुनियाद पर कही? अकल के अंधो, झूठ बोलते हो कौम के सामने, धोखे देते हो कौम को, और जितनी बातें तुमने की थी आज एक एक बात को खुद चाट रहे हो। तुम मसखरा बन गए हो। और एक मनसूबाबंदी के तहत मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं, मैं अपने अवाम को बताना चाहता हूं कि एक मनसूबाबंदी के तहत ऐसे लोगों से पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भरा गया कि अगर ये लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं तो इससे बढ़कर पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं हो सकती। जिनको हुकूमत सपुर्द की गई, जिनको वजीर आजम का दफ्तर सपुर्द किया गया, जिसको वजीर आजम का मनसब सपुर्द किया गया, और उस वजीर आजम के काबीना के वजारतों के मनसब जिनको दिए गए, वजीर आजम का मनसब, वजारतों के मनसब की इससे बढ़कर बेतौकीरी नहीं हो सकती। जिस तरह इस मुल्क में 2 साल से पाकिस्तान की इतने अजीम मनासिब की बेतौकीरी हो रही है। आज सेनेट के इलेक्शन कराए जा रहे हैं। जिस तरह 2018 में बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ मुल्क के इलेक्शन में धांधली कराई गई, आज सेनेट के इलेक्शन में फिर धांधली का एक बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आती क्या करें। कभी आईन में तरमीम का सोचते हैं, कभी कानून में तरमीम का सोचते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, जहां बैलेट का तस्वुर होगा वहां पर खुफिया तस्वुर भी होगा। बैलेट हमेशा खुफिया हुआ करता है और हम हाथ उठाकर वोट देने के हक में नहीं हैं, नाम लिखकर वोट देने के हम हक में नहीं हैं। अदालत में मसला चला गया, अदालत को इम्तिहान में डाल दिया गया। मैं आज भी अदालत के एहतराम को सामने रखते हुए, फाजिल जज साहिबान के इज्जत और इकराम को उसके मकाम पर रखते हुए ये जरूर इस्तदा करूंगा कि इस मसले पर अदालत अपने आप को फरीक न बनाए, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि इस हवाले से आईन खामोश है। आईन जहां बोलता है वहां अगर इब्हाम हो तो फिर अदालत तशरीह कर सकती है, लेकिन अगर आईन खामोश है, इस खामोशी को सिवाय पार्लियामेंट के और कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए आईनी तरमीम लानी होगी, कानूनी तरमीम लानी होगी। अदालत इस धंधों में न पड़े और नहीं अपने आप को मुल्क की सियासत में मुतनाज़ा बनाए। जो कुछ आज किया जा रहा है ये अदालतों के खिलाफ भी मुझे इस इमरान हुकूमत की साजिश लगती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान की मईशत का ये आलम हो गया है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को, उसकी भूख नहीं देखी जाती, उसको नहरों और दरियाओं में फेंक रहे हैं। बच्चों को उनको ज़बह करने पे मजबूर हो रहे हैं। माएँ घरों से बच्चों को बाहर लाकर उनको फरोख्त करने के लिए मजबूर हो रही हैं। उनसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही। पाकिस्तान की मईशत 0 से नीचे चली गई है। सालाना तरक्की खत्म हो चुकी है आपकी। अब भी अगर ये हुक्मरान बरकरार रहते हैं तो सीधी बात बताओ, जब उनकी मईशत तबाह हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। इमरान हुकूमत की बका ये पाकिस्तान के खात्मे की अलामत हो सकता है और हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह।
मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं यहां पहले भी कह चुका हूं कि सिंध के समंदरी जज़ायर पर सिंध के अवाम का हक है, बलूचिस्तान के सिंध के दरियाई और समंदरी जजीरों पर बलूचिस्तान के अवाम का हक है। किसी कीमत पर भी विफाक को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इन इलाकों के समंदरी जज़ायर पर कब्जा कर सके और उनके मुनाफे पे कब्जा कर सके। आप जानते हैं यहां सूबे सिंध में जो मल्टी नेशनल कंपनियां आई हैं, वो चौकीदार तक भी अपने मुलाजिम बाहर से लाते हैं। क्या सिंधी गरीब को ये हक हासिल नहीं कि वो मल्टी नेशनल कंपनियों के अंदर मुलाजमत कर सके और रोजगार कमा सके? अगर आज सिंध के गरीब के साथ जुल्म होता है, यहां पर मल्टी नेशनल कंपनियां आती हैं, उनके अंदर उनको मुलाजमत का हक नहीं दिया जाता, इंशाअल्लाह हम सिंध के इस गरीब हारी, इस गरीब मजदूर और इस मुलाजिम की जंग लड़ेंगे और उनके हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने भी कुछ अज़्म किए हुए हैं और हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अगर बिजली महंगी हो गई और रोज रोज आप महंगी करते जा रहे हैं, आपने मुल्क को अंधेरों की तरफ धकेल दिया है। आपने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके मुल्क की पहिए को जाम करने की कोशिश की है। आपने गरीबों से उनकी जिंदगी का हक छीन लिया है। तो फिर जाहिर है कि तुम एक मुहलिक बीमारी हो पाकिस्तान के लिए। लोग कहते हैं कोविड-19, मैंने कहा नहीं, कोविड-18। इस 2018 के कोरोना से इंसान जान छुड़ानी है हम लोगों ने। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहां सियासतदानों को उसकी तजलील की जाती है और नेब का एक इदारा जो फौज ने बनाया, जो मुशर्रफ ने बनाया, जो सिर्फ इसलिए बनाया कि सियासतदानों पर मुकदमे दायर किए जाएं, उनको मुकदमों में फंसाया जाए, मुल्क की सियासत न कर सके, और फिर ये कहता है कि सियासतदान तो मुझसे एनआरओ चाहते हैं। मुझे पता है कितनी दफा तुमने मिन्नत की है कि मुझे एनआरओ दो, हम आपको एनआरओ नहीं दे रहे हैं। आप हमारा क्या एहतसाब करेंगे? इमरान खान सुन लो, तुम हमारा एहतसाब नहीं कर सकते। अभी तुम हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो, अपनी जान छुड़ा लो, फिर हमारी बात करो। Go Imran! Go Imran! Go Niazi! एक टके के दो न्याजी, एक टके के सौ न्याजी, जस पी के सौ न्याजी। मेरे दोस्तों, फॉरेन फंडिंग केस हमने दायर नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने दायर नहीं किया, जेयूआई ने दायर नहीं किया, मुस्लिम लीग ने दायर नहीं किया, पीडीएम ने दायर नहीं किया, उनकी अपनी पार्टी के बानी अराकीन ने दायर किया है। और आज एक नया एतराफ उसका आ गया है कि बहुत सा पैसा जो बाहर से आया वो इमरान खान के जाती मुलाजिमीन के नाम पर आया है, बनीगारा में आया है वो पैसा। ये पैसे चोरों के सरदार तुम, और नारे लगाओ दूसरों पर कि तुम चोर हो। कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ हया करनी चाहिए। शर्म हया भी कोई चीज होती है जो आपके करीब से नहीं गुजरी है। और फिर
खुद कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जिसके बारे में कह दिया कि वो करप्ट है तो फिर वो करप्ट ही हुआ करता है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान हुकूमत के बारे में कहा है कि इस दौर में करप्शन बड़ी है, और जब दुनिया में वो 116 नंबर पर था 124 नंबर पे चला गया है। करप्शन के सरदार तुम, चोरी के सरदार तुम, यहूदियों से पैसा बटोरने वाले तुम, हिंदुस्तान से पैसा बटोरने वाले तुम, यहूद हनूद के पैसे पे सियासत करने वाले तुम, उनकी पुष्पनाही से इख्तिदार तक पहुंचने वाले तुम, और आर दूसरों को दिलाते हो। आपको शर्म नहीं आती इस बात पे? हमने हमेशा उजली सियासत की है और उजली सियासत के साथ इंशाअल्लाह इस मुल्क की सियासत में किरदार अदा करेंगे। हम इंशाअल्लाह इस हुकूमत को भी और इसके नेब को भी बेबस कर देंगे। इनका बाप भी हमारा एहतसाब नहीं कर सकेगा जब तक कि हुकूमत का अपना एहतसाब नहीं किया जाएगा। नारे तकबीर, चोर वजीर आजम मुर्दाबाद, चोर वजीर आजम, सिलेक्टर वजीर आजम, एक्टर वजीर आजम, डिक्टेटर वजीर आजम, गो न्याजी, गो न्याजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कैसा निजाम है कि आप मजदूरों को हुकूक तो नहीं दे सकते, लेकिन दासू डैम के मजदूरों पर आज गोली चलाई गई है और मुल्क के रियासती इदारों के अहलकारों ने उन पर गोली चलाई है, और इस वक्त भी 1 से 4 तक इस वक्त मौत और हयात की कश्मकश में हैं, शहीद भी हो चुके हैं। आज मुल्क के सरकारी मुलाजिमीन इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं अपनी बेरोजगारी को रोने के लिए, अपनी मुश्किलात को रोने के लिए। कल उनका इज्तिमा हो रहा है। आज हैदराबाद के इस अजीम इज्तिमा की नुमाइंदगी करते हुए आपकी तरफ से मैं उन सरकारी मुलाजिमीन को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूं। आज पाकिस्तान का किसान रो रहा है, मुल्क की ज़राअत बैठ गई है, मजदूर रो रहा है, आज मुल्क का वकील एहतजाज कर रहा है, आज मुल्क का डॉक्टर एहतजाज पर है, आज पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों का उस्ताद एहतजाज पर है। कौन सा शोबे जिंदगी है कि जिससे वाबस्ता मुतासरीन आज सड़कों पर नहीं फिर रहे और अपना एहतजाज नहीं कर रहे हैं? इंशाअल्लाह पीडीएम उनकी क़ियादत करेगा, पीडीएम कदम कदम उनके साथ होगा। हम पाकिस्तान के मजलूम और पसमानदा तबकों की आवाज है और इंशाअल्लाह उनकी आवाज बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। यहां पीडीएम की क़ियादत बैठी है। 26 मार्च को पूरे पाकिस्तान से लॉन्ग मार्च के काफिले रवाना होंगे और वो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह ये एक Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.